bow down our head. हाँ, ये आंखें बंद करके प्रार्थना करें। Close our eyes. God wants to speak with us. प्रभु हमसे बात करें From His scripture. प्रभु तेरे वचन के द्वारा। We never came to this place to hear one man's voice. परमेश्वर यहाँ पर मनुष्य हृदय से हम इधर आया नहीं। Our Holy Ghost wants to speak with us. पवित्र आत्मा तूने हमें लेकर आया, आपने बात करना है। If you are sitting here with great faith, God will bless you. यहाँ पर विश्वास के साथ आप बैठे रहे हो तो प्रभु आपको आशीष करेगा। God honoring your faith and godliness. परमेश्वर आपकी ईश्वरीयताई को देखकर तुम्हें आशीष करेगा। From the word of God, from the scripture, God wants to bless us. परमेश्वर के वचन से तुम्हें आशीष करेगा। Because the word of God is only authority of our life. क्योंकि वचन है हमारा जीवन का आधार। Without the word of God, no any blessings. वचन के बिना हमारा जीवन में कोई बरकत नहीं है। Lord Heavenly Father, we praise you, we give you, we honor you. स्वर्ग के पिता, हम आपको आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। We thank the Lord, accepted here our beloved pastor and family and elders. We give you all glories to you only, Lord. परमेश्वर तेरे नाम की महिमा चढ़ाते हैं। आए हुए परमेश्वर के दास दासियों के लिए, स्वासियों के लिए, चेले लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। Now speak with us little minutes from your scripture. परमेश्वर तेरे वचन से हमसे बात करिए। Bless everybody and send them with peace to the house. परमेश्वर सबको समाधान के साथ कर भेजो। Jesus name we pray, यीशु Father. के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Say louder voice, Amen. सारे आनंद से बोलिए आमीन। When we finishing the prayer in Jesus name we pray, Father, all congregation must say Amen. जब हम पिता के यीशु के नाम से बोलेंगे, सारे गले से आप बोलना चाहिए आमेन। Okay, sit straight, look at us. सीधे बैठो, मुझे देखो। If you have paper pen, take and write what I am telling. You are sitting important points. अगर पेपर पेन है, वचन लिखना है, लिख सकते हो। From the beginning, I use that. That is my habit. Those who are preaching, I use to write. शुरुआत से मेरी आदत है, कोई प्रचार करेगा तो मैं नोट्स लेना मेरा आदत है। Coming days also you can meditate what that preacher preached. आने वाले समय पर उसको मोड़ के देखेगा तो आपके लिए अच्छा लगेगा। All take John 14 chapter. सारे यूहन्ना 14 अध्याय को लिए। In this chapter we want to meditate word of God. यहाँ पर से परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। We know very well the important matter, that is gospel. Jesus born for us in this world. Luke 2:10 and 11 says. यहाँ पर हम पढ़ते हैं सुसमाचार के बारे में काफी। लूका 2:11 में लिखा है, यीशु हमारे लिए जगत में आया। That is great good news to the world, joy to the world. That is we are celebrating Christmas. एक क्रिसमस में एक ही वचन हम स्मरण करते हैं पूरे दुनिया में लिए, यीशु हमारे लिए आया। Then what is the second good news? दूसरा गुड न्यूज है, Galatians 3:13 says like this. गलतियों का 3:13 में इस तरह लिखा है, Jesus crucified on the cross to Yes. take our sin and curse life. यीशु सूली पर मारा गया, हमारे शरापों को, पापों को उठाकर मर गया था। He gave his full of soul for our salvation. हमारे जो उद्धार के लिए उन्होंने किराया अपने शरीर का जान के रूप में दे दिया। Without Jesus crucifixion, no Christianity. यीशु मसीह के मूर्ख कुर्बानी के बिना क्रिश्चियनिटी नहीं है। Then what is the third important good news? Great good news. तीसरा गुड न्यूज क्या है आपके लिए? Revelation 1:18 says like this. Revelation. प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, He rose from the death. 1:8 में लिखा है, मृत्यु से वो जी उठा। Jesus says, I died, but I live in everlasting life. 1:8 प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं मरा हुआ था परंतु युग तक जीवित रहने के लिए जी उठा हूँ। This all happened in this world. ये सारे कुछ आपके लिए मेरे लिए हुआ है। Then on 40 days he went to heaven. तीसरे 40 दिन के बाद स्वर्ग उठाया गया। So then what will happen? उसके बाद क्या हुआ? We are waiting for second coming of Jesus Christ. अब यीशु मसीह दोबारा आएगा करके हम इंतजार कर रहे हैं। Before Jesus go to heaven, he spoke about heaven to his disciple. यीशु मसीह स्वर्ग जाने के पहले अपने चेलों से बात किया था। Heaven not for all, only God's people, those who are saved, holy people. स्वर्ग सबके लिए नहीं है, जो पवित्र जीवन जी रहा है उसके लिए। The three gospel for all people, but heaven going not for all.
जो 3 सुसमाचार है सभी दुनिया के लिए, लेकिन स्वर्ग जाने वाला बात सभी के लिए नहीं है। Those who are accepted Jesus or God's salvation and living holy life, waiting for second coming of Jesus, they will enter into the heaven. Otherwise, nobody. जो लोग प्रभु से बपतिस्मा लेके उतार पाके पवित्र जीवन जी रहे हैं ना, वही स्वर्ग जाएंगे, सभी नहीं जाएंगे। I want to make happy in your heart. आपका दिल खुशी होना मैं चाहता हूँ। Our great belief, our great faith, heaven is ready for us. आपके लिए मैं कहता हूँ, आपका विश्वास के अनुसार एक धन्य आशा पूरी होने जा रहा है, आप स्वर्ग में पक्का होंगे। 47 years I am doing gospel ministry. 47 years में सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। I preach about second coming of Jesus. मैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में भी प्रचार कर रहा हूँ। I preach about heaven. मैं स्वर्ग के विषय में काफी प्रचार करता हूँ। I preaching about burning hell. मैं नरक, आग जलाने वाला नरक के विषय में मैं प्रचार करता हूँ। I preaching about judgment of Jesus. मैं यीशु मसीह का न्याय के सिंहासन के बारे में, अदालत के दिन के बारे में प्रचार करता हूँ। This is very important matter. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। You are not the gentlest people, you are great believers in this church. आप इस दुनिया के लोग नहीं है, इस विश्वासी लोग चेले हैं प्रभु की। So you must hear the word of God about heaven. आप स्वर्ग के विषय में जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। In John 14, यूहन्ना 14 में anybody read in your mother tongue 14:1 and 2. 1 और 2 पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। Your heart not be troubled. तेरा दिल व्याकुल ना हो। In this world, for God's people, many tribulation meet in our life. इस दुनिया में बहुत सारे क्लेश रोज हमको मिलता है। But Jesus says, don't worry about anything. यीशु मसीह ये कह रहा है, इस विषय में आप दुखी ना हो। Have faith upon God. आपका विश्वास मसीह में रहना चाहिए बस। And have faith upon me. आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। Because God, our heavenly Father, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारा स्वर्ग में से स्वर्गीय पिता है। I am son of God. मैं उसका पुत्र हूँ। Don't worry and don't weep, don't be a trouble in your heart about anything, because I am with you always. इस दुनिया में किसी भी क्लेश के विषय में आप व्याकुल ना हो। Without faith, without believing, we cannot enter into the heaven. विश्वास के बिना स्वर्ग में प्रवेश करना नामुमकिन की बात है। Without holiness also we cannot enter. पवित्रताई के बिना भी स्वर्ग नहीं जा सकता। This world is not own to us. हमारे लिए दुनिया कोई बड़ी लायक नहीं है। 2 Peter chapter 3 verses 10 to 14. You write, you can meditate in your house. लिखो, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10वां वचन। While we are watching this world, whole world going to perish by the fire. जो आग से जलने वाला इस दुनिया में आप रहते हो। We are thinking this world is permanent. No, Bible says this world is not permanent. This is temporary. हम दुनिया लोग ऐसा रहते हैं, इस दुनिया में परमानेंट रहेंगे। बाइबल कहती है परमानेंट नहीं है। What is our permanent place? हमारा परमानेंट प्लेस क्या है? Say anybody? कोई भी बोलिए। Swargya, heaven. We are going to heaven. You believe or not? आप लोग स्वर्ग में होंगे, विश्वास करते हो? There is no sickness in heaven. स्वर्ग में बीमारी होगा क्या? There is no any problem in heaven. स्वर्ग में कोई समस्या होगा क्या? There is no any tribulation in heaven. स्वर्ग में कोई सतावट होगा क्या? There is no deaf and dumb. स्वर्ग में गूंगे बहरे होंगे क्या? There is no headache. वहां पर सिर दर्द होगा क्या? No stomach ache. कोई पेट दर्द भी? Heaven is eternal rejoice place. So, स्वर्ग में आनंद काल तक आनंद Amen. वाला जगह है। hallelujah. So be happy. Don't worry about anything in this world. Problem, tribulation, nothing. No. Many tribulation will come. You think about
our heaven. ये दुनिया की आशीष सारे आग से जलकर मिट्टी बनने वाले, इस मिट्टी के लिए उस मानिक को नहीं खोने का है। Sisters, listen, very happy news to you. बहनों, आपके लिए खुशखबरी है, There is no kitchen in heaven. वहां पर किचन रसोई नहीं लगेगा। Very happy to sisters. बहनों के लिए खुशखबरी है, No need to cook. वहां पर खाना पकाने की जरूरत नहीं है। Brothers, one happy news. ब्रदर के लिए खुश न्यूज है, No any office work in वहां heaven. पर कोई ऑफिस मेहनत करने की जरूरत नहीं है। Be happy. अब खुश रहो, छुट्टियां होंगी वहां। Hallelujah. हालेलुया। Husband and wife may enter into heaven. They cannot live in heaven as a husband and wife. स्वर्ग में पति पत्नी दोनों चले जाएगा, स्वर्ग में पति पत्नी के रूप में नहीं रहेंगे। Very happy news. ये तो खुशी की खबर है भाई। In our Tamil Nadu, when I preach about heaven, I used to say this word. मैं तमिलनाडु में ये शब्द बोलूंगा ना, If husband and wife go to heaven, they cannot live as a family or husband and wife. I said this word. अगर तमिलनाडु में ऐसा पति पत्नी इकट्ठा मरेगा लेकिन उधर पति पत्नी के रूप में नहीं रहेगा बोलूंगा। If you meet in heaven, husband and wife, you cannot live as a husband and wife in heaven. स्वर्ग में ऐसा नहीं होंगे। One brother said, louder voice, Hallelujah! ये आवाज सुनकर एक भाई ने ऊंची आवाज से बोला हालेलुया। He want to escape from his wife. उन्होंने तो अपनी पत्नी से शायद परेशानी होगा, बड़े हालेलुया बोलने लगे। After I finished that message, he met me. आराधना के बाद तो सचमुच वो भाई मुझे मिलने आया था। Brother, another one doubt. He asked me. उन्होंने पूछा और एक डाउट है भाई। Okay, ask brother. मैंने पूछा क्या बात है? If I saw my wife in heaven, what will happen? अगर मेरे पत्नी को मैं स्वर्ग में पहचान लिया तो क्या होगा? Is there any problem from my wife? वहां पर और कोई परेशानी होंगे? He asked me. उन्होंने ऐसा ही सवाल पूछा। No any problem. मैंने बोला ऐसा कोई समस्या नहीं होगा। She see you and love you and go to another place in heaven. अब स्वर्ग में वहां पर आपको वो देखेगी, पहचानेगी तो उसको पहचानेगा, वहां पर धरती का सोच नहीं रहेगा। Then he said, oh, thank you brother, very happy in my heart. ये बात सुनकर ब्रदर का बड़ा सांस लिया। हाँ, धन्यवाद परमेश्वर। Heaven is a great family, not like world family. स्वर्ग बहुत अच्छा स्थान है, ये दुनिया के परिवार जैसा नहीं है। Because flesh, our human, no inherit in heaven. वहां पर स्वर्ग में मनुष्य की रीति से नहीं सोचेंगे हम। Jesus told, we are in heaven like angel. यीशु ने कह दिया स्वर्ग में हम यीशु के समान रहेंगे। Because angel never getting married. स्वर्ग में वहां पर शादी नहीं होगा। Like that we are in heaven. इसलिए स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेंगे। In heaven no flesh feeling. वहां पर जो शरीर की लालच नहीं रहेगी, But great joy. वहां पर आनंद जॉय रहेगा। Brothers, when you see your wife in heaven, you may laugh and smile. Say praise the Lord, tata, then you go your place. स्वर्ग में आपका पत्नी को आप देख सकते हैं, पहचानोगे, वहां पर से प्रेज़ द लॉर्ड कह सकते हैं, वहां पर अपने कमरे में लेके नहीं जाएगा। Otherwise, you never say, oh, come darling, we live another one family like that. You never say. आओ हम इकट्ठा अपने कमरे में रहेंगे, नहीं होगा स्वर्ग में। Are you very happy? Why I say this? उनके लिए अलग मंजिल है, आपके लिए अलग मंजिल है। Think about heaven. स्वर्ग के बारे में सोचो। When you are getting many problems in this heaven, think about heaven and laugh and smile and praise our God. जो बहुत सारे परीक्षा को आप सामना कर रहे हो, ये परीक्षा आने वाला महिमा की बराबर नहीं होगा। That's why Jesus said this word. इसलिए परमेश्वर ये शब्द कहा। See what the second verse says, 14 John. In my Father's house many mansions. I go to that place and make one mansion for you. वहां पर दूसरा वचन में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत सारे कमराएं हैंगी, आपके लिए मैं जाकर बनाऊं। Not enough. After I go to heaven, I want to make mansions, palaces for you. कमरा नहीं है, पैलेस लिखा है, मैंशन लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है? बहुत से स्थान है। हैं? मेरे पिता के रहने के स्थान है। पंजाबी में मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास ਹਨ नहीं तो मैं कहता
जो जो वह निवास का स्थान लिखा है, तमिल में भी कमराई लिखा है, लेकिन इंग्लिश में पैलेस लिखा है। Yeah. पैलेस வாசஸ்தான் Monsoon. தமிழ். हैं? राजा लोग रहने का स्थान है। மாளிகைகள் மாளிகை yes, yes. தமிழ். Many mansions, not like a valley. Very nice, very bright, very happy, all colors in heaven. स्वर्ग में एक व्हाइट हाउस के समान बड़े बड़े घर सिर्फ आपके लिए। I saw Taj Mahal in Agra. आगरा में मैंने ताजमहल को देखा। Anybody? कोई देखा ताजमहल? Very few. कुछ लोग देखा है। Brothers, bring your wife and go to see Taj Mahal. यार आपकी पत्नी को ताजमहल तो लेके जाओ। Do you know who built Taj Mahal? आपको मालूम है ताजमहल को किसने बनाया? Shah Jahan. On those days he was a great king. वो बड़ा राजा शाहजहां ने बनाया। He built that Taj Mahal for his memory of his loving wife. उसका प्रिय पत्नी के लिए उन्होंने ताजमहल बनाया। We saw many times, I and my wife, whenever we coming to Delhi, 5 times we saw that place. हम कई बार 5 बार जाके ताजमहल देख चुके हैं। See, wonders in the world, total 7, I think now 8. Huh? In this 7 or 8, Taj Mahal, one kind of wonders in this world. बहुत सारे चमत्कार है इस दुनिया में, उसमें ताजमहल भी एक है। What is the secret? क्या रहस्य ये बात क्या है? He spent more money to build that building. बहुत सारे पैसा उन्होंने खर्च किया है उस बिल्डिंग बनाने के लिए। He built that building with very costly stones. बहुत महंगिया पत्थरों से उन्होंने बनाया। Very costly, mirror stone. बहुत चमक रहा है ताजमहल, शीशे के समान। A man, at least a man, built one palace for his lover or wife. But think about our God. We are like bride, biblical language, spiritual. We are bride. Jesus, bridegroom. How he is making for us? एक इंसान एक ही स्त्री के लिए इतनी सारे करोड़ों पैसा खर्च करके इतना बड़ा बिल्डिंग बना सकता है, तो हम दुल्हन हैं, दुल्हा हमारे लिए इससे भी महान, ताजमहल से भी महान पैलेस बनाया। If you want to clap very strong. अगर विश्वास करते हैं तो जोर से ताले बजा करेंगे। Those who are clapping their hands, no cancer coming, doctor says. जो ताली जोर से बजाते हैं उनको कैंसर नहीं आता है। So hereafter clap your hands very strongly. इसलिए ताली जोर से बजाएगा तो कैंसर बीमारी नहीं आएगी। Not clap in road when you are going on the road. Many people will follow you. हैं, रोड पे खड़े होके ताली नहीं बजाने का है, चर्च में ताली बजाने का है। Those who are laughing every day half an hour, they will never get any disease. जो लोग आधा घंटा रोज हंसते हैं उनके लिए कोई बीमारी नहीं है। Medical says. मेडिकल कहती है Not laughing half an hour continuously. आधा घंटा ऐसे लगातार हंसने की जरूरत नहीं है। Little laughing. जब भी मौका होता है खुले हंसो। Before you go to bed, think how many minutes I laughed like that. You think. आप बेड में सोने के पहले सोचो आज कितनी मिनट मैंने कितनी बार हंसा। If any arrears from 30 minutes, balance, you can laugh in night time, then go to bed. आज आधा घंटा में कोई कमी रह गया, बाकी 10 मिनट और रह गया तो बेड में सोने के पहले अकेला बेड में हंसो, फिर कंप्लीट करके सो जाओ। Philippians 4:4, Saint Paul says like this. फिलिपियों के 4:4 में पौलुस इस तरह कहता है, Rejoice in the Lord always. मसीह में आनंदित रहो हमेशा। Again I used to say rejoice in the Lord always. मैं दोबारा कहता हूँ मसीह में आनंदित रहो। Great joy in Christ, very important. बहुत आनंद रहना मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है। Whatever it may be happen into your house or into your family or into this world, don't give up your soul for the sadness. कुछ भी हो जाए आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में, कुछ भी हो जाए, आपकी आत्मा को उदास होने नहीं देना। See, sadness, shocking, troubles coming from demon spirit. ये सारे दुख, उदास, क्लेश, ये सारे शैतान लेके आता है। Sometimes God also testing us. कई बार परमेश्वर भी फरकता है। God gives test
but Satan gives temptation. शैतान हमको जो शोधना ही लेकर आता है, लेकिन हाँ। परमेश्वर परीक्षा देता है। There is a great difference between testing and temptation. जो टेस्ट मतलब परीक्षा परखना, जो टेम्पटेशन का मतलब शोधनाएं। Examination is not bad. जो परीक्षा एग्जाम लिखते हैं ना, वो गलत नहीं है। If Jesus in your heart, be happy in Jesus Christ. अगर यीशु मसीह तेरा दिल में है, जरूर आनंद रखेगा। See, in third says like this, I will go and make mansions for you, and I return and take all of you to in my place, palace. मैं जाकर एक जगह को मैं तैयार करने के बाद आकर दोबारा आप सभी को ले जाकर मेरे संग रखूंगा। So the earth is not permanent for us. इसलिए मैं कहता हूं, ये जो धरती है हमारे लिए निरंतर की स्थान नहीं है। So get ready to meet Jesus in heaven. इसलिए स्वर्ग जाने के लिए तैयारी हो जाओ। Never give up your soul for vanity or sinful life. आपके आत्मा को व्यर्थ बातों से आप उदास होने नहीं देना। See, my eyes must be in holiness. मेरा आंखें पवित्र होना चाहिए। My brain thinking must be in holiness. तेरा दिमाग का सोच पवित्र होना चाहिए। My words from my mouth must be in holiness. मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द पवित्र होना चाहिए। I think Matthew 12:36 says we have to give account on the judgment day for our waste of talking. मत्ती 12:36 में लिखा है, हर एक शब्दों के लिए आपको अकाउंट देना पड़ेगा अदालत के दिन में। So don't speak ideal or waste of talking. We have to give account on the judgment day. आप व्यर्थ बातों से आपका मुंह को खराब ना करिए, क्योंकि अदालत के दिन में आपको जवाब देना पड़ेगा। Speak faithful words. आप विश्वास की योग्य शब्द कहो। Make happy to some other people. औरों को खुशी कराने वाला शब्द बोलो। Encourage your friends. आपका दोस्त मित्रों को उत्साहित करने वाला शब्द बोलो। In family also, brothers, encourage your wife. आपके वाइफ को आप उत्साहित करो। Sisters, encourage your husband. बहनों, आपके पति को जरूर उत्साहित करो। Don't say, no time to speak with my husband like that. Don't say. कभी भी बात नहीं करती है, ऐसा बंदर के समान घर में नहीं बैठने का है। Sit your husband and speak something very happy. आपका पति को जो खुश कराने वाला जोक सुनाओ। Somebody is your brother also. No more time to speak with my wife. That is very right. They are thinking. पति भी पत्थर बन के घर में ना बैठो, आपके पत्नी से बात करो, कोई जोक सुनाओ आपको पत्नी को। Morning and evening before eating, you pray family prayer. और पति पत्नी मिलकर सुबह या शाम परिवार की प्रार्थना करो। Husband, wife, and children, and others, morning and evening, must family prayer. Very, very important. जो पति पत्नी परिवार की जो प्रार्थना करेगा ना, बहुत असर पड़ेगी। Personal prayer, separate prayer, meditating, must. No problem. That is very, very good. But don't miss family prayer. जो मैं व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करूंगा, मैं अपनी कमरे में प्रार्थना करूंगा, ये भावना ना बताओ। It will bring peaceful. जो in your परिवार family. की प्रार्थना आपके लिए शांति का लेकर आने वाला साधन है। Jesus wants peaceful life from us. यीशु मसीह आपसे भी यही चाहता है, समाधान के साथ जीवो। Because our Jesus Christ, Prince of Peace. क्योंकि यीशु मसीह का क्या नाम है? शांति का राजकुमार। He is not a material for making trouble, problem, quarreling, like that. Jesus not making that. ये दुनिया की जो मटेरियल है, वो परमेश्वर ने बनाया, वो शांति नहीं देगा। Don't get angry upon your children also. आपके बच्चों से गुस्सा मत करो। Love is so great. जो परमेश्वर से जो प्रेम आपका दिया हुआ है, वो महान प्रेम दिखाओ। Bible says God is love. बाइबल कहते हैं परमेश्वर प्यारा है। God is love, but how is my life? प्रभु तो प्यारा है भाई, मैं तो गुस्सा ही रहूंगा। Jesus said, however I love you, you also love each and every in this world also. परमेश्वर ने दो हुक्म क्या किया? जैसे मैं आपसे प्यार करता हूं, वैसे तुम भी औरों से प्यार। Amen. Purity, love is not a sin.
जो प्यार में उत्पन्न हुआ, जो वो पवित्र, जो गलत नहीं है। Our Heavenly Father loved us so much, so you gave His begotten only one Son, that is Son of God Jesus Christ. प्रभु आपसे प्यार किया तो उन्होंने आपके लिए जो दिया गया यीशु के बारे में सोचो, एकलौते पुत्र को तेरे लिए दिया। Son of God Jesus loved so much, so you gave His full of life for us. परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दियागा, इसलिए पता लगा हमको, हमसे वो प्यार करता है। For to live our holy life, He gave His precious holy blood for our holy life. हम पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर यीशु ने अपने पवित्र लहू बहाया। All are giving, giving, giving. सब कुछ देता देता देते रहा। After Jesus went to heaven, He gave Holy Ghost. स्वर्ग में जाने के बाद तो क्या दिया यीशु? पवित्र आत्मा दिया। Up to this time, Holy Ghost giving us grace, talent, gift, victorious life in this world. पवित्र आत्मा भी हमें देते रहता है। क्या क्या देता है पवित्र आत्मा? आत्मा के फल, आत्मा के वरदान, अनुग्रह और पवित्रता, ये पवित्र आत्मा भी देते रहता है। See another one where I want to explain you. 6th. 6 वचन पढ़िए। I am the way, the truth and the life. Nobody enter into the heaven without me. पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। Heaven very nice place. स्वर्ग बहुत सुंदर जगह है, But without Jesus, nobody enter into the heaven. लेकिन यीशु मसीह के अलावा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। Wherever we go, this word we are preaching the street also. I am the way, the truth and the life. Jesus said like that. यीशु ने जो बोला है आपको भी गलियों में भी बोलना है। यीशु की मार्ग, यीशु की सत्य, यीशु की जीवन है। Because God makes heaven for His children. परमेश्वर ने स्वर्ग अपने बच्चों के लिए बना के रखा है। You cannot go directly to heaven. सीधा अपने द्वारा नहीं जा सकता स्वर्ग में। A sinner enter into the heaven, but not with sin. एक पापी स्वर्ग में जरूर प्रवेश कर सकता है, लेकिन पाप के साथ नहीं प्रवेश कर सकता। What is happening in this world? फिर क्या होगा इस दुनिया में? They will repent. वो उनको प्रभु यीशु तौबा कराता है। They must born again. वो दोबारा मन फिर आता है। However, when born from our mother's womb in this world, our father write in his diary. इस दुनिया में हम मसीह में जन्म होने के पहले माता के गर्भ में जन्म होते हैं, उसी वक्त भी आपका नाम स्वर्गीय किताब में लिखा है। That same way, when we born again, our Jesus Christ write our name and date in the living book of Jesus Christ. दोबारा तुम मसीह में जन्म होने के वक्त वो नाम पक्का करा देता है। This is the registration. ये रजिस्ट्रेशन हो गया जी तेरे नाम से स्वर्ग में। Go to heaven. तेरा मकान की, तेरे पैलेस की रजिस्ट्री हो गई। Without salvation, we cannot enter into heaven. वहां पर जाने के लिए खर्चा क्या है? उतार को बर्तन लेके जाना पड़ेगा। Oh, so that we are preaching gospel to many people. This is not a political and religious. Jesus, we are preaching about Jesus Christ, a person. He came to this world and giving salvation like that. स्वर्ग जाने के लिए यीशु की मार्ग है, उतार के लिए यीशु की नायक है करके गली गली में हम इसलिए प्रचार करते हैं, यीशु के बिना दुनिया में कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। From the beginning, Jesus started this good news. I am the way, the truth and the life. शुरू से लेकर यीशु ये शब्द बोलते आ रहा है, मेरे द्वारा ही मानव स्वर्ग में आ सकता है। Before Jesus go to heaven, what he told a command, go to whole nation and preach word of God, gospel like that. यीशु मसीह ने विश्वासियों को, चेलों को बोल रहा है, यीशु मसीह स्वर्ग जाने के पहले आखिरी शब्द ये कहता है, जाओ सारी सृष्टि को यीशु समाचार सुनाओ, यीशु की मार्ग है, सत्य है, जीवन। This command not only for preacher or pastor, all believers are ministers, all believers are preachers.
one missionary told this word. ये सुसमाचार कौन सुनाना है? सिर्फ पास्टर सुनाना है क्या, या लीडर सुनाना है क्या? सारे विश्वासियों सुनाना है। यीशु की मार्ग है, सत्य है, जीवन है। Gain some souls to your church. That is your ministry. उनको पैदा करके दोबारा जन्म बनाकर चर्च में ले आना है। However, Bible says and church rules, all your tithe offering must come to your church. That same way, you do ministry, gain some people, gain some gentleness soul and take to your church. That is very important ministry also. आप बहुत सारे पास्टर के पास जाते हो, कहीं इधर उधर चर्च में भी जाते हो, लेकिन आपका दशमास आपका मेंबर चर्च में ही देते हो ना। इसी तरीका से विश्वासी को इधर उधर पैदा करते हो, लेकिन आपका चर्च में उसको नया जन्म पाकर ले आना चाहिए। Bible says those who are winning the souls, they will call wise man and wise woman. बाइबल कहते हैं जो आत्मा जीत लेता है वो आकाश के तारे के तरह चमकता है। उसका एक नाम बाइबल दे रही है, वाइस मैन, वाइस वुमन, बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान पुरुष। Those who are winning the souls, God will give award to you in heaven. आप आत्मा जीतने के बाद आपका एक रिवार्ड प्रभु दे रहा है, ताज दे रहा है। So try anything, give tracts, put your church seal backside of your tracts, give to 10% every weeks. मैं ताज पाने के लिए क्या करना चाहिए? पर्ची लेके जाओ, पर्स में रखो, जाने के वक्त 10 बंदे को पर्ची बांट के आओ। पर्ची लेके आओ, चर्च में आने के वक्त 10 बंदे को पर्ची बांट के यीशु के लिए ले आओ। Tell to gentleness people, I don't came here to spread the religious or political. Jesus only the way, the truth and life to go to heaven. You say briefly, boldly. आप बोल सकते हो मैं कोई नेता के लिए बंदे इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ, कोई और कोई कमेटी बनाने के लिए बंदे इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ, मेरे स्वर्गीय राजा के लिए आपको बुलाता हूँ। आओ, यीशु तुम्हें बुलाता है। 14:14. 14 की 14। If you ask anything in my name, I will do to you. मेरे नाम से जो कुछ तू मांगेगा मैं तेरे लिए करूंगा। This is about prayer. ये हमारी प्रार्थना। If you live God's willing, you can ask, what is God's willing? First willing, winning the souls. That is very important. आप प्रभु की इच्छा के अनुसार जिएगा तो प्रभु तेरी प्रार्थना सुनता है। प्रभु की इच्छा क्या है? आत्मा जीतना प्रभु की इच्छा है। Soul burden prayer. That is very important. आत्मा से भर के, आत्मा की बोझ से जो प्रार्थना करता है वो प्रार्थना प्रभु का मर्जी है। You pray into your prayer room, Lord, give me some new souls. I want to bring that soul to church, like that. प्रार्थना करो पहले अपने प्रेयर रूम में जाके, प्रभु मुझे आत्माएं दीजिए, वो आत्मा को मैं चर्च में ले जाना चाहता हूँ। Somebody come to your house on Saturday evening. शनिवार शाम को कोई बंदा आपको मिलने आ रहा है, You give food, उनको खाना खिला सकते हो, give place to sleep. उनको बैठने के लिए मौका दे सकते हो। Then Sunday you bring that soul into church. उनको चाय पानी पिलाकर उनको बोलिए कल सुबह मेरे साथ चर्च में आओ। This is your great ministry. ये कुछ खाना पीना देना भी एक सेवा है। At least per year, 100 tracts, 200 tracts. Give to gentleness people. ये साल में 100 ट्रैक्स गिनती के दे दो, उसमें कितनी आत्माएं बचाएगा। साल के लास्ट में आपका गिनती होगा, इस साल में इतनी आत्मा मैंने बचा लिया। Yes, this is not for believers. ये तो विश्वासियों करने वाला काम है। Tell your neighbor or not unknown people, gentleness people, Jesus loves you. आप अड़ोस पड़ोस को भी जिम्मेवार है आपकी, उनको सुसमाचार सुनाना। Any problem, come to church. We pray. Our pastor will pray like that. You bring that soul. कोई भी समस्या आपके कान में फोन के द्वारा भी आपको आता है, इसलिए आता है तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे। For that purpose also, you must pray unto God. आप इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे इस्तेमाल करो। See 15. 15 If you love me, you can keep my commandments. आप मेरे ऊपर प्यार करेगा, मेरे आज्ञाकारी होंगे, मेरी कल्पना की आज्ञाकारी होंगे। Somebody say, I am child of God.
I am son of or daughter of Jesus, but they never keep God's word. हैं? कोई कहता है मैं परमेश्वर का बेटा हूं, प्रभु का बेटी हूं, कभी भी बाइबल नहीं पढ़ता। What is the gain? क्या कोई फायदा है उनके लिए? Somebody say, कभी वो बाइबल के आज्ञाकारी नहीं है तो क्या फायदा है? 4 hours prayer, 4 घंटे वो प्रार्थना करेंगे, 8 hours prayer, 8 घंटे भी प्रार्थना करेंगे, 12 hours prayer. 12 घंटे भी प्रार्थना। Okay, I honor you. मैं आपको आदर करता हूं, इज्जत करता हूं। 4 hours praying, but you are speaking lie 4 or 40 per day. लेकिन 4 घंटे प्रार्थना करने के बाद गुस्सा करते हो, जलन करते हो, झूठ बोलते हो, चिड़चिड़ाते हो। 8 hours prayer, but you are getting angry upon your wife. 8 घंटे प्रार्थना करके तेरे पति से, पत्नी से गुस्सा करते हो, क्या फायदा है तेरा 8 घंटे की प्रार्थना? No strength to keep word of God. आप तो वचन की आज्ञाकारी नहीं है, दिखावा। Your prayer not enter into the heaven. बहनों भाइयों, तेरी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगा, याद रखियो। Prayer very very important, but keep the word of God. प्रेयर करना बहुत जरूरी है, लेकिन वचन की आज्ञाकारी होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। Yeah, I never give up my soul for any vanity, any trouble, any sin, because Jesus always saying, watching me like that. That fearing must come into your मैं heart. प्रभु का भय मानने वाला स्त्री हूं, मैं प्रभु का भय मानने वाला पुरुष हूं, इसलिए कि मैं व्यर्थ चीप रीति से एक्ट नहीं करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Christianity life is not yet sleeping upon the bed, cushion bed. It is like a troubled way, many tribulation way. Bible says, Jesus also told. जो दुनिया में हमें अच्छा खुशी और कंफर्ट लाइफ प्रभु यीशु ने दे दिया तो धन्यवाद। क्रिश्चियन बनने के बाद एक बात के लिए भी तुम्हें इंतजार करना होगा, एक दिन सतावट भी आएगा मेरे लिए, उस सतावट के लिए भी मुझे तैयार रखना चाहिए। Never murmuring our God when tribulation time. जब आपका जो सतावट के समय आएगा, तेरे लिए लोग झूठे बोलेंगे, थूकेंगे, निंदा करेंगे, मारेंगे, कुटेंगे, उसी वक्त तुम कुड़कुड़ाना नहीं है। The Old Testament days, God saw 40 lakhs of His people suffering in Egypt. He selected 2 persons, Moses and Aaron. They released that such persons to Canaan. When on the way, those who are murmured, all perished, died. आपको मालूम है इजराइल लोगों में किसको प्रभु ने मारा? जो लोगों ने कुड़कुड़ाया, जो रेगिस्तान में आते थे। ये 30 लाख लोगों में जितने लोगों ने अपनी जरूरत पूरा नहीं हुआ, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, मीट नहीं मिला, तो कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर उनको मार डाला। On those days, Canaan, nowadays Israel country. அந்த காலத்துல கானான் தான் இப்ப இஸ்ரேல் நாடு. उसे दिन कनान जो देश जो कह रहा है आज इजराइल कहते हैं। See, those who murmur, they cannot see Canaan. जो लोग कुड़कुड़ाने वाला कभी स्वर्ग नहीं प्रवेश करेगा। Those who are praising our God, they enter into the Canaan. जितने लोगों ने स्तुति करते नाच कुचल के गया, वो लोग कानान में प्रवेश कर लिया। Sisters, never murmur against your husband. जब भी आपका पति के विषय में आप कुड़कुड़ाना बंद करो। Brothers, never getting angry, unnecessary angry upon your wife. आपका पत्नी के विषय में आप कुड़कुड़ाना बंद करो भाई। God never like this. परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है। Keep your holiness. आपकी पवित्रता ही दिखाओ। Somebody thinking murmuring is not a great sin, but great sin. लेकिन कुछ लोग मन के अंदर इस स्त्री मेरे को मिल गया, ये पुरुष मेरे लिए मिल गया करके जो कुड़कुड़ाते हैं, ये समझते कोई बड़ी पाप नहीं है। बाइबल कहती है ये कुड़कुड़ाना सबसे बड़ा पाप है। Whenever we are worshiping our God, praying, our character must be changed day by day, going to holiness. अगर आपके अंदर कमी है, आपके पत्नी के अंदर कमी है, आपके अंदर कमी है, बच्चों में कमी है, प्रार्थना किया करो लिखा है। प्रार्थना करके अपना बोझ उतारो, तेरे पवित्रता ही बढ़ेगी। Jesus told, seek first of all the kingdom of God, then all will be provided unto you. परमेश्वर कह रहा है कमियों क्यों दिया गया है? तो परमेश्वर के राज्य को गोजा नहीं, पगला परमेश्वर के राज्य को गोज करके देखो, सारे संतोष आनंद दिया जाएगा साथ में। हालेलुया। Don't worry about worldly things. इस दुनिया में व्यर्थ बातों पर ध्यान ना करिए। Think about what is the truth.
Think about what is the holiness. Think about what is the righteousness. This is very important. जो सच्चाई, जो पवित्रताई, जो ऊंचाई, उसी बातों पर तेरे नजर उठाओ, धरती के वस्त्रों पर नजर ना उठाएं। 14:27. 14:27 I give my peace unto you, not other people give, or not the worldly giving. I give my own peace, though so you will not be a trouble or afraid. मैं अपनी शांति तुझे देता हूं, मैं अपने समाधान को तुझे देते जा रहा हूं। मैं दुनिया देने वाला शांति नहीं देता हूं। मेरा शांति से तुम नहीं डरोगे, ना ही व्याकुल होंगे। Different peace. इस दुनिया के समाधान, In this world. यीशु का समाधान, दोनों में फर्क है भाई। Jesus giving his own peace. यीशु मसीह अपना समाधान तुझे देता है। Never go to worldly peace. Never go to worldly peace. बैटरी उलगा समाधान. दुनिया के समाधान नहीं है। Satan also giving peace. शैतान भी लोगों को समाधान देता है। That is temporary. वो 3 घंटे सत्संग में जाके बैठते हैं, उनको भी कुछ शांति मिलती है भाई, वो टेम्पररी है। Satan giving peace, it leads up to second death of hellfire. जो शैतान देने वाला शांति कहां तक ले जाएगा? आखिरी मौत, नरक के आग में उनकी आत्मा को ले जाएगा। Somebody will asking, oh, I never go to church, but you are going to hell. कई लोग कहते हैं मैं कभी चर्च नहीं गया, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। I never read Bible. I never pray. I never go to church. I never give offering. So why God saved you? जो परमेश्वर ने आपको उतार दिया, तो दुनिया की तरह लोगों समान ना बोलिए। बाइबल पढ़ा नहीं पढ़ा, ईमानदार ना दिखाओ। बाइबल पढ़ा है तो नहीं पढ़ा तो शर्मिंदा हो जाओ। पढ़ो, फिर मन फिराओ, फिर स्वर्ग राज्य मिलेगा। Some such Christian people losing that peace in their life. बहुत सारे लोग इसी कारण अपनी आत्मा को खो लिया। God's peace is very great. परमेश्वर का समाधान अनमोल है। I am giving my own peace unto you. क्योंकि ये दुनिया की नहीं, यीशु ने अपने खुद का समाधान हमको दे दिया। The Bible says, Jesus told, यीशु कहा world also giving peace. इस दुनिया भी समाधान देता है भाई, But that is not a great joy or happy. That is going to hell. ये जो समाधान के ऊपर आप धोखा ना खाओ, वो थोड़ी देर के लिए, Duplicate peace. वो डुप्लीकेट समाधान। You see one chain, original gold, समय original gold, then you can see one covering gold. ये गोल्ड और कवरिंग गोल्ड को पता है आपको? नकली सोना, ओरिजिनल सोने का फर्क पता है? You see, new time, first time, both are like same. देखने के वक्त दोनों पीला रंग का होगी, दोनों बराबर होगी, No different. उसमें कोई फर्क दिखाई नहीं देगा तुरंत। But put into one box, wait and see after long time. तो एक बॉक्स में दोनों को रखो, कई साल के बाद खोल के देखो, Gold is gold. गोल्ड वैसे रहेगा, ओरिजिनल गोल्ड। Covering gold became dry. कवरिंग होगा क्या है, वो तो पिघल जाएगा। Never go to Satan peace. वो शैतान का समाधान भी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। Jesus giving us great joy. यीशु मसीह का समाधान महान है। हालेलुया। Final, 16:33. 33 पढ़िए, 16:33। Yes, in this world many tribulation, but be a courage. I got victory in this world. जो मेरे अंदर समाधान होने के लिए मैं आपको बताया, इस दुनिया में बहुत सारे सतावट है, परंतु मेरे पास जो रहेगा उनके लिए ये समाधान मैं दूंगा। दुनिया के उपद्रव से आप लोग क्लेश ना हो जाएं। मैं दुनिया को जीता हूं, तुम भी दुनिया को जीतोगे। When you are going in tribulation way, you are tasting our Jesus Christ love. आप इसी जो सतावट के अंदर जाओगे, यीशु का प्यार को चख के देखोगे, वो बड़ी स्वाद लगेगा। All stand, I want to pray for us. सारे खड़े हो जाएं, हमारा शांति के लिए प्रार्थना Little करें। word of prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Jesus. संतोष मन रहा, संतोष मन रहा, संतोष मन गिरा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, शांति मुझे दे दिया, संतोष मन गिरा, संतोष मन रहा, संतोष
heart. धन्यवाद देते हैं ये सुंदर वचन के लिए। By this word of God, you blessed us. परमेश्वर तेरे वचन से तूने हमको समाधान दिया। Sure, we believe from this day we are getting ready to meet heaven. You in the heaven land. We want to see you one day. आज से लेकर हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है, हम स्वर्गवासी हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord Jesus, give strength to live holy life, victory life in this world now. परमेश्वर से दुनिया के जीवन में पवित्र जीवन जीने के लिए, तेरे विश्वास के जीवन जीने के लिए हमें अनुग्रह करिए। As servant of God and disciples of you, we bless in the name of Jesus, our beloved people. परमेश्वर के दास होते हुए इन लोगों को शांति समाधान के आशीर्वाद में देता हूं। Let your all blessings, physically, spiritually, family blessing and individual blessing, you give to everybody now. परमेश्वर तेरी शांति को इनको दीजिए, तेरी समाधान को इनको दीजिए। Those who are sick or weak or any problem, pain, right now you touch everybody and give good health now. परमेश्वर जो बीमार है, जो मुश्किल में है, जो क्लेश में है, इसी वक्त उनका क्लेश आनंद से बदल जाए। Jesus, hallelujah. यीशु के From head to feet, from head to feet. आमेन। जो सिर तो लेके पाँव Touch everybody. सिर तो लेके पाँव तक छूलिए प्रभु। Full healing. पूरा चंगाई दे दो, Strengthen their hearts, ताकत दे दो प्रभु, strengthen their brain, उनका दिमाग को शक्ति दे दो, touch their bone, उनकी हड्डियों को तकड़ा बना, touch their blood circulation. उनका हर एक लंग्स को छूलो राजा। All the problems, get out from every bloodshed. हर एक परेशानियां उनका शरीर विरान आत्मा छोड़ के भाग जाए। All BP and sugar, any cholesterol problem coming down to normal condition. सारे ब्लड प्रेशर शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। We bless our people. अपने लोगों को आशीष देते हैं, All your blessings come. आपका सारे आशीष इनको मिल जाए। Jesus' name, we pray. यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा के सहयोगी दबाव हमसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होंगे। Amen. हालेलुया हालेलुया शबत शलोम Shalom. मारनाथा शबत शलोम Shalom. मारनाथा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करेगा। तो प्रार्थना करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं। सिस्टर मरिया पॉल पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. शुक्रिया। जय मसीह।